I come, sir? Please come. Good morning, sir. Morning. Thanks. पूजा, अपना परिचय दीजिए। So, my name is Pooja. I did my schooling from Kendriya Vidyalaya, Old Camp, Prayagraj. Thereafter, I did my intermediate from there only. And from Rajkumar Govind Institute of Technology, I did my BTech in Electrical and Electronics. ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है। Yes, sir. पहला अटेम्प्ट कब था? So, last year. तो पहले अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू दिया था? No, sir. Pre-qualify नहीं हुआ था. आप किस प्रकार का सोशल वर्क करती हैं? Sir, actually, I was engaged with Light the Literacy. वो सर चिल्ड्रन और विमेन के लिए काम करती है, एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन में, एंड विमेन के लिए सर जैसे मैंने चाइल्ड मैरिजेस में या फिर उनको कोई लीगल हेल्प चाहिए होती तो हम लोग उसके लिए काम करते थे। कोई एक उदाहरण देकर बताइए कि सर जैसे कि जब मैं दिल्ली में थी तो वहाँ पे मैंने एक लड़की थी 12 इयर्स की, उसकी शादी हो रही थी सर, अप्रॉक्स 28 इयर्स का वो आदमी था जिसके साथ, तो हमने विद द हेल्प ऑफ DCW उनको रेस्क्यू किया था। परिवार की क्या अवधारणा है? फैमिली डेफिनेशन सर एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ा है तो इसलिए। Yes, you carry on. You can speak in English. So. Okay, sir. So, family in sociologically is defined as basically they are characterized by the ties of marriage and common residence, economic cooperation and reproduction. विधवा विवाह की क्या सामाजिक स्थिति है हमारे राज्य में? सर आज अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बहुत ही इम्प्रूव्ड है, लोग इसे स्टिग्मेटाइज नहीं समझ रहे हैं, अब तो काफ़ी चेंज हो चुके हैं सिनेरियो विद द चेंजेस इन लॉ, लाइक ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स अब विडो रिमैरिज एक्ट था हमारा सबसे पहला, जिसने कि इस तरफ चेंज लाया था सोसाइटी में। बाल विवाह के लिए तो एक कानून है यस सर। कि इतनी एज के पहले अगर कोई विवाह करता है तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। यस सर। अभी जो भारतीय न्याय संहिता बना है नया, यस सर। उसमें इसको रखा गया है बाल विवाह निषेध को? यस सर, चाइल्ड मैरिज तो बैन है सर BNS में भी। और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? क्या पनिशमेंट है? पुराने IPC में भी क्या पनिशमेंट था? सर जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है हमारा 2006, उसके अकॉर्डिंग सर इम्प्रिजनमेंट है, जहाँ तक सर मैं रिकॉल कर पा रही हूँ 3 इयर्स एंड सर फाइन है साथ में। वक्फ संशोधन विधेयक विचाराधीन है अभी। यस सर। ये विधेयक क्या है और इससे क्या फ़ायदा या क्या लाभ, क्या हानि होने जा रहा है समाज को भी और देश को भी? सर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके तहत हम बेसिकली लीगली एडमिनिस्टर करना चाहते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें कि अभी तक जो डिसीजंस थे सर वो उनके पर्सनल जो बोर्ड होते थे उनके वो लोग लिया करते थे, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी उसमें इंक्लूड होंगे। और फिर ऐसा मैं अभी इतना याद कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। Pooja, you have done your electronics also, no? You Yes, tell sir. me about drone technology. What is drone? And nowadays, we see many things. Yes sir. It's used in various fields. Yes sir. In marriages also, we see one drone flying over the head. Yes sir. Another one is dropping some bombs. Yes, It has already created havoc. Yes sir. It seems that future war will be fought by drones only. What is this? Sir, drones are basically unmanned aerial vehicles. Right now they are in use because of cross-border terrorism, in which they use it for smuggling or for surveillance. How it functions?
since you have done your electronics also, that's why I'm asking. So, which are the technology used for creating a drone? Sorry, sir, I'm not aware. Fusion of technology. What do you understand by fusion of technology? Fusion of technology. That is implanted in the flying of drones. Sorry, sir, I'm not aware of this. Okay. What is digital arrest? Sorry, sir, digital? Arrest. Digital arrest. Yes. So this has been in news since some days. So digital arrest means the. So can I explain it according to the news what I have read? In the paper? Yes. Go ahead. So they basically call the people in wearing the uniforms, and they say that they have done some crime, and This is some sort of blackmailing, kind. keeping the person standby. Yes, sir. Kind of. That's good. And do you know about DINK? There is a term in sociology, DINK. Dink. Sorry, I'm not able to. Double income, but no kids. Now it is very much prevalent in the new generations. What is this sort of phenomenon? Like this is a new trend developing among youngsters. Since you have done your sociology also, so that is becoming a very sociological problem nowadays in India too. So double income. Double income, having no kids, with no kids. With no kids. Got the idea? Double income is husband is Husband also earning and wife is also yes, earning, yes, but they don't want any kid. Yes. Why? So basically, because they now, as both are earning, they face the role conflict, and also the evolving expectations. They are evolving expectations from the marriage. That is very serious sociological problems. Yes, sir. And now Indian society is facing, since our population is supposed to decrease over the years in coming days. Yes, sir. Today we are the most populous state in the world. Yes, sir. But tomorrow it may be that, since our thinking is that, and that will create a demographic deficit also. Some people are increasing their families, the size. As you know, that demography is also linked with the political power. Yes, sir. Which right to voting. Number matter. If 51% votes for one, then that person will be elected. That's the rule of majority in democracy. Yes, sir. So that is going to. Okay, what is paid parenting? So paid parenting Paid parenting. is basically taking care of children with the help of external agencies like the daycare or the That the is house linked helps. with this DINK theory also. Yes, sir. Like suppose if family, wife, husband both are not having Having- kids, they will have a rat, they will have a cat, they will have a dog each. Yes, sir. And all those, love and affection will be bestowed on them. So that is called nowadays a new phenomena developing in Indian society, that kids, they don't want any trouble in their day-to-day life, because they have to care for their careers also. Okay. Nowadays there is a tussle between India and Canada. Yes, sir. What are the issues involved? So the Canadian government has basically alleged that the Indian envoys are involved in the killing of a separatist leader, that is, I think, Hardeep Singh Nijjar, and the government has completely denied it. After that, the Indian government has expelled the diplomats of Canada and also recalled the High Commissioner of India to the Canada. What is 5 eyes related to this? 5 eyes, you know? Yes, this. I think this is the. So what I can recall is the information share. It's related to some information sharing, I think.
Yes, you were a bit right, but not fully I'm not right. able to Just explain yourself. recall. Okay. Pooja, you have written, you have it as jogging. Jogging plus social working. What is the jogging and what is walking? What is the difference between these two? So the difference is that of speed and the distance. Basically, What is the speed you usually keep in jogging? so if I jog, so basically I can cover around 3 to 3.5 kilometers in about 15 to 17 No, minutes. I am asking the basic difference. I am not asking about how much you So jog. speed and distance covered. There must be some difference, no, in walking and jogging. Yes, One person, how many steps one person should take in jogging or in walking? Average for normal and good health. How many steps is recommended? so steps though I can't tell you because I just walk within the. Have you read a book by Sujata Divakar, 10,000 steps a day? No, sir. If you have time, after the your interview, go through that. Okay, that will give your answer. Acha, you belong to Haveli Kharagpur. Yes, sir. You have a lot of forest there. Forest there. Lot Yes, of sir. forest there. What Yes. are the major species of that forest area? So Jamui region. You are asking about the Yes, Jamui Haveli region, yes, sir. Kharagpur. I am asking about your native place. So that is wildlife sanctuary, and I think Species I am asking about the trees. Very simple thing I am asking you. species of tree. So किसका we can जंगल है वो? सर वहाँ पे शीशम भी पाया जाता है. शीशम एंड पीपल वी कैन सी. ये जंगल का स्पीसीज नहीं है, ये प्लांटेशन का स्पीसीज है. जंगल में भी थोड़ा होता है, बट इट इज़ नॉट नेचुरल फॉरेस्ट. वहाँ किस चीज़ का है, आप हिंदी में बताइए. सखुआ का नाम सुने हैं? यस सर. सखुआ का जंगल है. अच्छा, एक बहुत फेमस डैम है वहाँ पर, आपका हवेली खड़गपुर के पास है, उसका क्या नाम है? सर भीम बांध. भीम थोड़ा दूर है आपसे, बटिया के जंगल में है वो. यस सर. ठीक है, वो दैट्स ऑल्सो करेक्ट आंसर. हम डैम के बारे में पूछ रहे हैं. भीम बांध इज नॉट ए डैम, इट इज़ ए टूरिस्ट प्लेस. हॉट वाटर स्प्रिंग है वहाँ. स्प्रिंग क्या नदी ही है. यस सर. आप डैम के बारे में बताइए. सर एक तो हमारा जो खड़गपुर झील है सर, वहाँ पे कौन सा डैम है, वही तो पूछ रहे हैं. हनुमाना डैम का नाम सुना है? यस सर. हाँ, दैट इज द आंसर. ठीक है. अच्छा, यू हैव रेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इजंट इट? यस सर. What is the difference between electrical engineering and this electronic engineering? What are the basic differences? So basically electric deals with the power sector, and the electronics is that we use in the smaller devices. Like So if we talk about the semiconductors or the ICs, in this section we what read is about computer? this. So computer is a electronic device that basically complements the How human this work. electrical device and electronic devices are different? How? What is the basic thing there? Suppose I give an example. Refrigerator. ठीक है. Yes sir. और ये ब्लोअर गर्म हवा देता है, और इधर कंप्यूटर और ये Computer. मोबाइल. Yes sir. हो गया दोनों का. अब डिफरेंस बताइए. What makes them different? सर इसमें जो सर्किटिंग होती है वो आईसी पे पूरी सर्किट वगैरह होती है, और उसका जो होता है मोटर्स ICU का बेस क्या है? सॉरी सेमी चिप्स हैं सर. चिप्स पे जो What are chips made of? सर चिप्स जो होते हैं सर सेमीकंडक्टर से मटेरियल से ही बने होते हैं. उस पर बहुत मतलब मिनिएचर साइज में उस पर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और सारी चीज़ें. आप बेसिक डिफरेंस नहीं बता रही हैं. In electricity you use high volt and high current, यस सर. whereas you use Controlled. mostly direct current in it, a Yes, smaller current, a smaller part. Use Yes, a lot of diode in it. ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए. What are our three constituent of parliaments या three parts of parliament किसको बोलते हैं? सर प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा.
लोकसभा को क्या बोलते हैं, उसका अंग्रेजी में नाम बताइए। The lower house, sir, and the upper house. लोअर हाउस, अपर हाउस, तो ये तो कॉमन नेम हो गया, उसका अंग्रेजी में नाम बताइए लोकसभा का ना। So people's पूरा house. बताइए ना। People's house. अरे आई एम नॉट आस्किंग वेरी बिग Yes, sir. क्वेश्चन टू यू। हाउस ऑफ, House of people. और चलिए ये तो आधा मैंने बता दिया, उसका बताइए। And so representatives, sir, जो upper house होता है, council and the काउंसिल वर्ड है, अब बताइए। काउंसिल ऑफ स्टेट सुना, is the council of states. तो ये बेसिक चीज़ें जानना चाहिए ना। Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया? So at the national level, national, state, and district. दिस थिंग, व्हाट दिस थिंग? So नेशनल municipals. वन, स्टेट इज सेकंड, Municipals. व्हाट इज थर्ड वन? So gram panchayats and ग्राम municipals. पंचायत। Yes, sir. इसके अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं, किसके तहत ये आते हैं? So gram panchayats. हाँ, किसके तहत आते हैं? ठीक है, योर आंसर इज ऑलमोस्ट करेक्ट। ग्राम पंचायत, जिला परिषद वगैरह सब आता है उसमें। Yes, sir. ठीक है, तो किसके तहत आते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नाम सुना है? Yes, sir. Local self government है. तो इट कम्स ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेम द 3 स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, व्हिच हैज गॉट द हाईएस्ट, व्हिच हैज गॉट द सेकंड हाईएस्ट, व्हिच हैज गॉट द थर्ड हाईएस्ट। 3 स्टेट्स ओनली। GDP, in case of GDP, I think, sir, अच्छा, बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट बताइए। so right now, 2023 का भी बता सकते हैं। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ बिहार? so 10.10 approx is a 10.4 something. तो ये कितना है कंट्री में, किसका हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है? बिहार का है, सर. बिहार का है। Yes, sir. गुड। तो बिहार का जीडीपी का कंपोनेंट्स बता दीजिए। So the किस चीज से कितने से बना है जीडीपी का? है ना, 2-3 कंपोनेंट होता है ना यूजुअली। सर मैक्सिमम जो शेयर है हमारा वो नहीं, पहले तो कंपोनेंट बताइए, तब ना शेयर बताइएगा कि इसका इतना है। रेवेन्यू एंड द कैपिटल। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के Okay, sir. माध्यम से बताइए। सर प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बिहार में, दैट इज अराउंड 20%. ठीक है। एंड व्हाट इज दैट प्राइमरी सेक्टर? so the agriculture and allied activities. राइट। सेकंड? basically. Second is the secondary sector, that is manufacturing, Right. and that is What is the also around contribution? 20%, 20%, and the services are around 60%. 60%. 60%। Yes, sir. ओके, ठीक है। और टिल द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ बिहार, Smallest river. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ बिहार? North Bihar districts. हाँ, कितने हैं? So देन टेल अबाउट साउथ बिहार। it's the total number of districts. ओके, थैंक यू। Okay, sir. पूजा, आपके इस इंटरव्यू के बाद हम लोग आपस में विचार विमर्श कर यह पता करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। Yes, sir. उसके बाद आपको हम बताएंगे, फीडबैक देंगे, कुछ सजेशन देंगे। Yes, sir. बाहर वेट कीजिएगा, 1 मिनट के बाद तुरंत बुलाते हैं वापस। Yes, sir. Thank you, sir. Come in, sir. इंटरव्यू का डेट पूछ लीजिएगा, ऐसे फिर असेसमेंट। नेक्स्ट। Thank you, sir. पूजा, हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके यह पता कर लिया है कि आपके इंटरव्यू का स्तर बढ़िया रहा है, सामान्य से बहुत अच्छा रहा है, हम लोगों ने ये पाया है। नॉलेज पार्ट में आप नॉलेजेबल हैं ही हैं, क्योंकि आपने रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है ना, तो वो वहाँ तो टेस्ट हुआ, वहाँ तो लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, हज़ारों, उसमें से आप सेलेक्ट हुई हैं, तो आप नॉलेजेबल हैं, इसमें कोई शंका है नहीं। यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आप आए हैं या और भी जो लोग आते हैं, अपने नॉलेज का टेस्ट करवाने थोड़ी ना आते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि हम जाएं कि हम कितने ज्ञानी हैं, लोग बता देंगे, हमारे पास कोई मीटर ऐसा है जो कि देखेंगे और बता देंगे कि हाँ इतना पॉइंट, इतना नॉलेज है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। Yes, sir. इंटरव्यू का मतलब होता है कि जानकारी कितनी है
प्लस जानकारी को किस रूप में यह प्रेजेंट कर रहा है, कैंडिडेट किस तरीके से कर रहा है प्रेजेंट, कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, बोलने की क्षमता, प्रवाह जिसको गति कहते हैं वो कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है, लोगों से मिलने जुलने की बात दिमाग में है कि कुछ दूसरी बात चल रही है, इन सब चीज़ों का परीक्षण होता है। प्लस बैठने का पोस्चर क्या है, एटीट्यूड क्या है, Yes, sir. कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बहुत सारा चीज़ होता है जिसको कि देखा जाता है। तो नॉलेज कैसा है ये बता ही दिया आपको। कुछ और बात हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है ना, Yes, sir. और इंटरव्यू पहला है। Yes, sir. तो पहले इंटरव्यू में बहुत सावधानी बरत करके, एहतियात बरत करके, सतर्कता के साथ, तैयारी के साथ, मजबूती के साथ जाना चाहिए। Yes, sir. कुछ चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा, अपनाइएगा तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इग्नोर कीजिएगा तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। आपने प्रवेश किया, Yes, sir. आकर यहाँ थोड़ा ठिठकी और उसके बाद आप बैठ गई। दिस इज़ नॉट द मैनर। Sorry, sir. Yes, sir. बता दे रहे हैं, आपको तब तक खड़ा रहना है जब तक कि चेयरपर्सन या कोई मेंबर ये न कहे प्लीज सिट डाउन। Yes, sir. लेकिन आपने अधिकार पूर्वक समझा कि ये कुर्सी तो मेरे लिए है ही है, तो ये आपके अनुभव की कमी को बताता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपकी मानसिकता को शो करता है, कि सामंतवादी मानसिकता है कि भाई ये तो मेरा है ही, हम बैठेंगे ही। नहीं सर, सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस थी और मैं बिल्कुल skip हम हो गया, बता sorry, रहे हैं कि sir. Sorry, sir. अनुभव की कमी के कारण ऐसा होता है, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो इसका ध्यान आप रखिएगा, Yes, sir. आगे रखिएगा। दूसरी बात है, मैंने बहुत स्पष्ट रूप में आपको कहा कि पूजा अपना परिचय दीजिए। कोई डाउट तो है नहीं मेरे लैंग्वेज पर कि किस भाषा में ये आदमी बोल दिया, किस भाषा में हमने पूछा हिंदी था, में सर. आपको जवाब उसी में देना था। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आप बीपीएससी का रिटन एग्ज़ाम दिए हैं, यूपीएससी का भी दीजिएगा या दी चुकी होंगी, Yes, sir. उसमें हिंदी एक विषय रहता है ना, क्यों रहता है यह? बताइए क्यों रहता है? क्योंकि सर हिंदी कंपलसरी है वो। Yes, sir. ठीक है, उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं। तीनों मेंबर्स में दोनों भाषाओं में प्रवीण हैं और फ्लुएंट हैं, लेकिन हिंदी में क्यों पूछ रहे हैं? जब कंपलसरी वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं? वो जानना चाहिए। कल आप अधिकारी बनेंगी, डीएसपी बन के जाएंगी, कुछ ऐसे केस आएगा, गांव के अंदर आप जाएंगी और वहाँ शुरू हो जाइएगा, मिस्टर रामचंद्र कम हियर, टेल मी व्हाट हैपेंड। तो बताइए कि क्या स्थिति बनेगी? Yes, sir. ये बहुत ख़राब स्थिति बनेगी ना, वहाँ लोग हुटिंग करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड के मेंबर यहाँ 3 हैं, वहाँ 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। Yes, sir. बोर्ड के मेंबर आपसे सवाल जिस भाषा में करें, अरे वो हिब्रू में थोड़ी ना आपसे बात करेंगे, लैटिन में, स्पेनिश में थोड़ी नहीं करेंगे, या तो हिंदी में करेंगे या अंग्रेजी। Yes, sir. लेकिन आप फॉलो कीजिए, वो अगर हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में रिप्लाई कीजिए, अगर वो इंग्लिश में बोलते हैं, सवाल करते हैं तो इंग्लिश में आप कीजिए। Yes, कोई तीसरा लैंग्वेज तो है नहीं जिसमें कि वो बोलना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को अपनाइएगा आप, ठीक है। Yes. हम लोगों ने सम्मिलित रूप से यह पाया है कि शुरुआती के दौर में जब आप यहाँ बैठे, आपने परिचय दिया, उसके बाद जब आपसे कुछ पूछा जाने लगा तो उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल आपका 10 था। सपोज दिस इज़ इमेजिनरी फिगर, 10 था, लेकिन उसके बाद आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, 11, 12, 13 होना चाहिए, लेकिन आपका घटता गया। हम लोगों की यह राय है, 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, 8 से 7 तक आ गया आपका। इसका रियल कारण क्या है आप जानिए, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हम लोगों ने महसूस किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इसको अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड नहीं आना है। ये बहुत माइनस रिमार्क्स जाता है और मार्क्स में भी काफ़ी कमी होगी इससे। इंटरव्यू ये हो जिसे आप मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं, वहाँ मेन इंटरव्यू होगा, या इंटरव्यू यूपीएससी में भी हो, यस सर। 100 कैंडिडेट में 100 कैंडिडेट 100 आउट ऑफ 100 कोई भी 100% प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, कोई नहीं देता है, लेकिन उसको पास आउट करेगा। सॉरी सर, आई डोंट नो, कहने में क्या दिक्कत है। आप अपना अवसर भी, अपना समय भी बचाइएगा, बोर्ड का भी बचाइएगा, यस ऐसा कहा कि ताकि दूसरा प्रश्न किया जाएगा आपसे। यस सर। बोर्ड के मेंबर थोड़ी नहीं पूछेंगे कि अरे आपसे तो हम उम्मीद नहीं किए थे कि आप इतना छोटा सा प्रश्न का जवाब नहीं दीजिएगा। यस सर। आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक तरीके से जानना चाहिए। आप जिस ज़िले से आती हैं या जिस स्थान से आती हैं, पोखरिया की रहने वाली हैं ना आप, यस सर। तो आपके क्षेत्र की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहने को इन्होंने बांध के बारे में पूछा, भीम बांध नाम है, वहाँ कोई बांध नहीं है। आप गई हैं वहाँ? सर गई हूँ सर। वो सर स्टार्टिंग में मुझसे गलती हो गई, और फिर उसके बाद इसलिए कॉन्फिडेंस मेरा, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि मैंने बिना पूछे ही मैं बैठ गई थी। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली फिर मतलब नहीं वो ठीक थोड़ा है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात हो नहीं। गया हम था। लोग अभी जो कर रहे हैं वो ब्रशअप कर रहे हैं। Yes, हम sir. लोग कोई ऐसा नहीं ग्रिलिंग नहीं कर रहे हैं, इसको No, sir. अदरवाइज नहीं No, sir, लीजिएगा। yes, sir. Yes, आप तो हमारी कैंडिडेट हैं ना। Yes, sir. आप वो डायमंड है जिसको कि हम लोग तराश रहे हैं कि ताकि हमारा डायमंड वहाँ जा करके बहुत अच्छा परफॉर्म करे और अंतिम चयन सूची में आपका नाम हो। यस सर। हनुमाना डैम को कौन नहीं जानता है खड़गपुर में? यस सर। आपने नहीं बताया उसके बारे में। दूसरी चीज़ है कि आपने हवेली खड़गपुर लिखा है। रेवेन्यू विलेज का नाम है खड़गपुर, नॉट हवेली। हवेली वहाँ के लोग कहते हैं, आसपास के लोग कहते हैं, जानते हैं, बट हवेली वर्ड जो है ये अपने को ये बताने के लिए हम हवेली खड़गपुर के। आपने हवेली कहीं देखा है खड़गपुर में? आप घर के लोगों से पूछिएगा कि चलिए हमको हवेली दिखाइए, कि नहीं हम देखेंगे। आखिर नहीं है तो ये नाम क्यों है हवेली? सर क्योंकि प्रीवियस टाइम में जो किंग्स वहाँ पे रहते थे, बेसिकली मैंशंस बनाने के लिए फेमस थे, इसलिए। वहाँ दर्शनीय स्थल में या घूमने फिरने की जगह में एक झील है, खड़गपुर झील जिसे कहते हैं। Yes, sir. बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बना हुआ है, यस सर। लंबा चौड़ा झील है। कभी पानी लबालब भरता है तो मछुआरे बोट लेके बोटिंग करते हैं। यस सर। कोई रिक्वेस्ट करता है कि हमको घुमा दो तो कुछ पैसा लेता है, Yes, sir. घुमा भी देता है। बहुत अच्छी जगह है पर्यटकीय दृष्टिकोण से। यस सर। भीम बांध तो जाने से लोग परहेज करते हैं, क्योंकि कतराते रास्ते ठीक हैं। नहीं है उस तक जाने के। यस सर। अदरवाइज वो ज़माना आज से 30 इयर्स बैक जब हम लोग गए हुए थे वहाँ, तो हम ओवरनाइट रहे थे और रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच में स्विमिंग करते थे। अच्छा, अभी तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं करते हैं जाना। हाँ, 5 वो o'clock मैं बता रहा हूँ। तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको लगता है कि जो कुछ हम बता रहे हैं उससे आपको कुछ लाभ मिल सकता है Yes, अगर sir. आप इसे फॉलो करेंगी तो। अदरवाइज़ कभी भी आप डाउनग्रेड मत होइए, मनोबल को ऊंचा बनाए रखिए, इन सब चीज़ों को अमल करिएगा। करंट अफेयर से वास्ता बना के रखिए, न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़िए, एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4। हिंदी से परहेज मत कीजिए, हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़िए। Yes, sir. स्थानीय बातें उसमें आती हैं, हिंदू में और टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आती हैं। यस सर। कम आती है वो सारी चीज़ें, उससे Yes, sir. प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत की राष्ट्रपति अभी विदेश दौरे पे गई हुई हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, रखिए, अपडेट रखिए। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है, किस क्षेत्र में किसे मिला, जानकारी रखिए। यस सर। टर्बुलेंस बांग्लादेश के साथ आप समझ रही हैं, Yes, sir. श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। हम लोगों ने आपसे कुल मिलाकर के 27 प्रश्न पूछा, 500 प्रश्न तो पूछा ही नहीं। यस सर। इतना विस्तार है प्रश्नों का, तो आपसे तो पूछा ही नहीं प्रश्न, तो आपको तैयारी तो रखनी होगी ना। यस। अब बताइए, 1 मिनट के अंदर बताइए कि आपका आज का यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा और आप सेल्फ असेसमेंट में अपने को कहाँ पाती हैं, संक्षेप में बताइए। सर इंटरव्यू में सर मेरी जो मेजर गलती जो आपने बताई अभी, वो तो
उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा, मैं कॉन्फिडेंट थोड़ा सा कम हो गई थी क्योंकि मैंने इनिशियली गलती कर दी थी। और फिर सर थोड़ी क्लैरिटी की, जैसे कि सर ने पूछा कि मतलब मेरे विलेज वाला जो था उस वक्त मुझे बिल्कुल ही फर्म रहना चाहिए था कि ये चीज़ें हैं वहाँ पे। एंड सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक डिफरेंस जो सर ने बताया वो माइंड में था मेरे, बट मैं वो नहीं बता रही थी, मैं कुछ और ही बता रही थी। हाँ। वो चीज़ मेरे ध्यान में नहीं था। एंड सर आपने जो टर्म्स पूछे वो टर्म्स मुझे ध्यान में रहना चाहिए, मतलब मैंने उसके बारे में अच्छे से मैंने लेटेस्ट है और करेक्ट है। चूँकि आप ऐसे वही पूछे गए जो आप स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम परमानेंट एम्प्लॉई भी हैं, है ना? सर मैंने किया था जॉब, सर अब नहीं कर रही हूँ। हाँ किया था तो Yes, sir. तो ये ड्रोन सिस्टम क्या है, किस टेक्नोलॉजी पर है, स्पेस से ही रिलेटेड है कुछ मामला। तो और भी आप सोशियोलॉजी लिए हैं तो उससे भी ऐसा नहीं है कि irrelevant सोशियोलॉजी या में out हम of लोग है। 15 प्रश्न और कर सकते थे, लेकिन समय की एक सीमा होती है ना, Yes, sir. नहीं कर सके। सोशियोलॉजी में बहुत अंदर तक जा सकते थे। कब है आपका इंटरव्यू? सर 22 को। 22 22 तो, तारीख को। ये सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको उस तरफ ले जाना है जिधर आप जो है और करें, ताकि ऑनरेबल मेंबर्स पूछते हैं वहाँ Yes, sir. तो आप जवाब दे सकें, है ना? वे उन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं जहाँ उनको उम्मीद होती है कि आप जो है नहीं जवाब देंगे। ये थोड़ा पूछेंगे कि परिवार क्या है, परिवार क्यों Yes, sir. टूट रहा है, ये नहीं, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि जिनके बताने से ऐसा लग जाएगा कि आपको पूरा बैकग्राउंड पहले से मालूम Yes, है ना? कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उत्तर की, एक ही प्रश्न के उत्तर देने से स्टूडेंट का, कैंडिडेट का पूरा उसका IQ लेवल पता भी चल जाता है। Yes, तो ये sir. टेस्ट वैसे ही है, हार्डली वो लोग 10, 12, 15 मिनट ही आपको देंगे। बहुत अच्छा रहा तो 10 मिनट, अदरवाइज जो है यहाँ इंटरव्यू आपका बहुत लंबा चला है। इसलिए अच्छा चला कि वी फील कि आप जो है यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन इंटरव्यू एंड वी आर कीपिंग यू इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। आपको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोगों ने ये समझा। अदरवाइज़ ये जो फीडबैक है, सजेशंस है, इसमें 3 मिनट हम लोग देते हैं, आपका 10 क्रॉस कर चुका है। कोई यह जानने का प्रयास नहीं करेगा कि आपका ज़्यादातर समय प्रयागराज में बीता है, गाज़ियाबाद में बीता है, बिहार के बारे में आप बहुत कम जानती हैं, कम उम्र में ही माता पिता के साथ या आप चले गई इलाहाबाद, वहाँ रहना आपकी मजबूरी थी। ये मुझे सब फादर आर्मी में, इसलिए इधर उधर जाना पड़ता है। कोई यह जानने का प्रयास नहीं करेगा। कोई पूछेगा तो बताइएगा। अनकॉल्ड फॉर नहीं बताना है कहीं। ठीक है सर। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी है ना, तो Yes, बिहार sir. से वास्ता होना चाहिए ना। sir. सीधा सीधा कैंडिडेट के, आप बिहार से हैं, बिहार लोक सेवा आयोग में हैं, बिहार में आपको काम करना है, हम बिहार के बारे में पूछेंगे। यस सर। ध्यान में ये बात रखना। मनोबल को बनाए रखिए, बोल रहिए, चेयरफुल रहिए, जिस पर टैक्स नहीं लगता है कहीं, मुस्कुराहट उसको कायम रखिए। हम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, ऑल द sir. बेस्ट। थैंक यू सर। एंड रियली सॉरी सर, मैं बिना बहुत ही मैं नो नर्वस नो, हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट कोई नहीं, हैपेंस। हम लोग बहुत इजीली बात भी कर रहे हैं और बहुत इजी वे में लेते भी हैं इन चीज़ों को। मैंने हमारा सोचा था उद्देश्य आज- यही रहता है कि भाई हमारा कैंडिडेट यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरा ब्रशअप होकर के जाए, Yes, sir. इतना कि चमकदार बन के जाए कि भाई एक मिसाल कायम करे, बस। आपको सफल होने में मदद मिल सके, हाँ। ऐसा हम लोग का प्रयास है। बस यही मोटो और है। बिहार यूपी में जितना फॉरेस्ट है आप उसको सखुआ कह सब जंगल कह सकती हैं, सेफ है। लेकिन आपने बताया नहीं, मैंने जो पूछा कि भाई आप अपना अनुभव भी बताइए और बोर्ड के बारे में भी बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। सर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। अभी सर मैंने मतलब कि जैसे देखा है मॉक वगैरह, तो कुछ फैक्चुअल भी रहते हैं, लेकिन फैक्चुअल थे कुछ, लेकिन एनालिटिकल मुझे ज़्यादा सही लगा। मुझे सर जैसे आपने भी पूछा, सर आपने भी पूछा था, डिफरेंसेस जो पूछा वो बेसिकली मुझे पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये एस्पेक्ट सर मैंने ये वाला नहीं पढ़ा था जो आपने मुझे अभी बताया। ये सर जो टर्म आपने यूज़ किया था डिंक जो यूज़ किया था, डबल हाँ। इनकम। सर डबल इनकम एंड विद नो डबल इनकम with having having no kids. kids. Yes sir, इसके बारे में सर मैंने नहीं पढ़ा था। तो इससे आपको मुझे ऐसा काफ़ी लगता help है हुई। कि इस इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपने जो अपना 30 मिनट बिताया है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है? Yes sir, ऑब्वियसली हो सकता है सर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सर अभी इनफैक्ट। चलिए ठीक है, चलिए, wish you विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।